Hello students, this is Sarika, maths teacher. So in my previous video, I explained the introduction of data handling. So the next topic of data handling is histogram. What do you mean by histogram? We have done the bar graphs, right? Bar graphs is not for the continuous data. What do you mean by the continuous data? Because histogram is a graphical representation of the continuous data, right? So it is a graphical representation of a continuous data. Continuous data means when the values it has been given in the class interval which is continuous. Continuous means 60 to 65, 65 to 70, 65 that is continuous here, 70 it is continuous. So there are certain values like there are weights have been given and number of workers which we call the frequency. So the number of workers lying between weight having weight 60 to 65 are 7 and accordingly, right? So we have to draw a histogram. Question is draw a histogram, right? For this data it is a continuous data. So drawing a histogram means drawing the graph means bars but of the continuous data. They are not separate bars. So if we draw the separate bars, it is called a bar graph. If we draw the bar graphs, double bar graphs means there are two different datas and you are plotting the bars on the same graph for two different datas. That is called double bar graph, right? So this is a histogram. I've already drawn here. So what you have to do, you have to see the data here. What is given? Class interval 60 to 65. So we have to start from 60. So here the difference will be of 60. Here the difference will be of 5. 60 to 65, 65 to 70, right? So we have to draw a kink here, showing that here we have taken value 60. Accordingly, then, right, 60, 65, 70, we have to see the question, the minimum value and the maximum value. Minimum value was 60, maximum value was 90. So accordingly, I have plotted the graph. Now, first value from 60 to 65 is 7. So just draw a bar of 7. Then 65 value it's repeating. So 65 value is repeating means 65 to 70 it will be 10. So 65 you have to again draw the line from 65, right? So 65 to 70, then 70 to 75. So ये वाली lines जो हैं they will be common. This line is common to both, right? ये 60 to 65 था, फिर 65 से same है. That is called a continuous data. वो अलग नहीं हो रहे हैं, continuity में जा रहे हैं. 65 to 70, 70 to 75. So it is a continuous graph, right? Continuous, a graph for the continuous data, we can say that, right? I hope the children it's clear. Histogram is clear. You can take another question, right? Data must be given, that will be continuous. You have to drawing the bar graphs but in a continuity, right? Like 60 to 65, 65 फिर आ रहा है 65 to 70. ये जो values है you can plot here. Accordingly you can take the scale. आपकी जो values है, here my scale 7 minimum value है, maximum value is 23. So आप 4 का difference ले लो, 3 का ले लो, take the difference of 2. Accordingly, take the difference of 5, 10, 15, 20 as you wish, as you feel comfortable, right? So I've taken a difference of 4, 8, difference of 4. 4, 8, 12, 16, a table of 4, right? 4 ka table hai, right? Okay, children. So now we'll do the next topic, okay? Yes, children. Now, next type of graph is a circle graph, right? It is also called a pie chart. Pie chart. So this type of graph, it is a circle graph, right? We have done the rectangular graphs now. This is a circle graph and it is called pie chart, right? What is it called? A pie chart. So what is pie chart? It is a circle graph, right? So here the data has been given and I'll explain how to draw this circle graph. Right. This data will be given that activities we have here, sleep, school, homework, play, others. And the time in hours, right? So the time in hours is for sleep 8 hours, 6 hours, for school, homework 5 hours, play 3 hours and other activities 2 hours, right? So this data will be given and this we have to draw, we have to calculate this part ourselves, right? So now from here what we have to do, we have to find out the total of this, that is 24. So just find out the total, then here you have to find the central angle. What angle you have to draw here, that is calculated here, right? How? Take the first value here 8, divide by the total 24 and multiply by 360 degree because in a circle we have 360 degrees, right children? So do this calculation, do the cutting and all, like 8 3 are 24, cutting by 3, you'll get these angles here, 120 degree, 90 degree, 75 degree, 45 degree and 30 degree. I hope it's not difficult to calculate. Just the cutting and all, just cancel it with the same table, right? Cancel it by 2,
5, whatever. If it is possible to cancel by 2 or 5, then make it a simplest form. After cutting, you'll get the value that will be the angle. So how to convert it into the central angle? This first value divided by the total into 360. First value 6 divided by the total into 360. This value divided by the total and 360. So what are the two values which are common in this? वन से 360, सब 360 से मल्टीप्लाई होंगे और सब 24 से डिवाइड होंगे. क्यों 24? बिकॉज द टोटल इज 24. सो नीचे टोटल आएगा या 360 आएगा, ये फिक्स रहेगा. और values differ by these 8, 6, 5. These are the values which are differing, and we are getting the angle. After solving, we are getting certain angle. These angles we have to plot on the circle graph. Now, how to plot? You need a compass to draw the circle, right? You need a protractor. Protractor is a D. D होती है जिसमें angles लिखे होते हैं, right? So D ऐसे होती है, right? D में दो रीडिंग्स होती हैं, उसमें दो स्केल्स होते हैं. एक में अंदर वाले में हियर इट 0, 10, 20, 30, 90 इट इज इंक्रीजिंग दिस वे, राइट चिल्ड्रन. और जो बाहर की रीडिंग आप देखोगे उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है 0, राइट? जो बाहर वाला सर्कल है, सेमी सर्कल. सो रीडिंग्स आर रिटन हियर. इट इंक्रीजेस दिस वे, अंदर इंक्रीजेस दिस वे. वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है, आई एक्सप्लेन. अगर आपकी ये लाइन है, आप इस साइड से, राइट साइड से एंगल्स मेजर कर रहे हैं, आप डी यहाँ रखोगे तब आप इनर वाला देखते हो. अगर आप यहाँ रखते हो तब आप यहाँ वाला देखते हो, बाहर वाला, राइट? विच इज इंक्रीजिंग दिस वे एंड विच इज द आउटर स्केल. जब आप यहाँ से मेजर करते हो, राइट, तब आपका वो इनर वाला आता है, राइट? आई एक्सप्लेन हियर in this how to draw this now. ठीक है, first draw the circle with the help of the compass, then draw this line. At least one line you have to draw, right? At least one line you have to draw. So अभी जो ये इस तरह की लाइन है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, आप डी को यहाँ रख रहे हो, तो आपके एंगल्स यहाँ से इंक्रीज होंगे 0 ये. तो आपने वो इनर वाला देखना है, राइट? यू हैव टू सी द इनर स्केल. अगर आप उस साइड से ड्रॉ कर रहे हो, सपोज आपने लाइन यहाँ बना दी, अब आप यहाँ से बना रहे हो, तो वहां के लिए आप आउटर देखते हो, राइट? सो ओके, नाउ I have this line here. I'll be taking the protractor and I'll be matching this point center with this center. उसका center इसके center पे रख दो, right? Match this line, this straight line with this. अब आपने यहाँ प्रोटेक्टर रखा, ये लाइन इसके साथ मैच होनी चाहिए, ये सर्कल सेंटर यहाँ मैच होना चाहिए, तो वो सेंटर यहाँ और ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ मैच होनी चाहिए. तो डी बिल्कुल आप यहाँ रखोगे, राइट? उसमें 120 डिग्री आप अंदर वाला स्केल देखो. सो दिस इज 120. आई हैव मार्क्ड हियर. ड्रॉ अ लाइन एंड राइट देयर 120 डिग्री एंड दैट इज फॉर द स्लीप. आप वो कौन सी एक्टिविटी आप वो वहाँ पे लिख सकते हो, कैन राइट. तो सिमिलरली नाउ यू विल कीप दैट डी हियर. उस डी को हम ऐसे उठा के उल्टा रखेंगे, यहाँ रखेंगे उस डी को, वो डी ऐसे आएगी यहाँ, राइट? तो ये लाइन आप सेम प्रोसेस है ना, तो प्रोसीजर मेथड इज द सेम. ये जो लाइन है आपकी, इस पे रखेंगे आप, जैसे आपने वो डी यहाँ रखा था, अब आप डी को यहाँ रखेंगे, डी का फेस यहाँ होगा ऐसे, तो आप ये लाइन मैच होगी, द सेंटर विल मैच विद दिस. और यहाँ जब आपने डी रखी हुई है ऐसे, आप अंदर वाली रीडिंग्स देखेंगे 90 डिग्री कहाँ है, then you will mark that point, join the line, and this will be 90, and that is for the activity of school activities, right? Similarly आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपकी लाइंस आ रही हैं, आप डी वहां रखोगे, right? You will be keeping now D here. आप डी यहाँ रखोगे तो वो डी ऐसे दिखेगा. यहाँ आपने ये सेंटर यहाँ रखा है, ये लाइन इसके साथ मैच होगी, तो वो आप वहां से देखोगे तो डी यहाँ होगा ऐसे, राइट? वो सेंटर यहाँ का. तो यहाँ से आपको वो you will be finding out where it's 75 आप मार्क कर देंगे, 75 की आप लाइन बना देंगे, देन यू विल गेट द 75 फॉर द होमवर्क. सिमिलरली वो डी आप यहाँ रखते जाओगे, आगे आगे जाना है. जहां जहां फर्स्ट हमारी ये लाइन थी, हमने डी यहाँ रखा, अब हम इस पे डी रखते हैं. वो डी कैसे रखनी है, ये लाइन जो है इसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है? दैट शुड मैच विद द सेंटर यहाँ होना चाहिए. तो वो डी आपको यहाँ ऐसे नजर आ रही होगी, वो आपने डी यहाँ को रखी होगी ऐसे, ठीक है? तो आप वो मेजर कर दो 90. सिमिलरली फिर आपने डी यहाँ रखी, तो ये इसके साथ मैच हुआ, ये वाली लाइन इसके साथ मैच होनी चाहिए, और वो डी उधर को नहीं होनी चाहिए, डी इधर को होनी चाहिए, आगे को. देन यू विल बी कीपिंग दैट डी हियर, ये पॉइंट इसके साथ मैच हो जाएगा, और ये जो लाइन है इधर की है, इधर की इधर आएगी, राइट? वो स्ट्रेट लाइन मैच होनी चाहिए, आधा उधर को जाएगा डी. डी विल बी हाफ देयर एंड हाफ डाउन. सो वो डी ऐसे नजर आएगी आपको. डी में जहां पे भी एंगल आपका 45 आएगा, मेजर दैट, जॉइन द लाइन. और लास्ट वाला आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही एंगल बचता है, 30, अदर्स में वो अपने आप आ जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज सर्कल ग्राफ, राइट चिल्ड्रन?
And circle graph we call pie chart, drawing the pie chart, right? Like we have a pizza, drawing different parts. These are called the sectors. एक sector दूसरा sector having different angles. So I'm repeating the process again. I'm repeating this. What I did, what were the steps here? How to make this here? For making this circle graph pie chart, we need the angles, but angles are not given in the question. What is given? The activity will be given in some time, whatever it's in the question. So here it's time in hours, 8 hours, 6 hours, 5 hours. I need to convert it into angles. So how to do that? First find out the total. This 24, we need this total here. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय टोटल, सबके वैल्यू और टोटल आपका सेम सबके नीचे डिवाइड होगा इनटू बाय मल्टीप्लाइंग बाय 360 डिग्री, क्योंकि आप 360 डिग्री का जो सर्कल है उसके एंगल्स को डिवाइड कर रहे हो ना. सो 360 से आप इसलिए मल्टीप्लाई करते हो क्योंकि कंप्लीट एंगल इज 360, पूरा राउंड में 360 डिग्री है. तो आफ्टर सॉल्विंग, आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व इट. आई विल सॉल्व वन फॉर यू हियर. Like it's 8 by 24, here it's 360 degrees, cancel it by 2, यहाँ करो वहाँ करो, once कर लो. चलो यहाँ से सीधा भी हो सकता है, right? 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 12 right? So ये 4 3 12 सीधा कर लो. अब 3 यहाँ है, यहाँ तो 1 आ गया, 3 1 इसको डिवाइड, 3 1 3 2 6. सो यू गेट द आंसर आफ्टर कैंसलिंग. जब हम कैंसिल करते हैं हम एक के साथ करते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए. ये नहीं आप इसके साथ भी कर रहे हैं उसके साथ भी कर रहे हैं सेम स्टेप में, नो, राइट? वंस एट अ टाइम. या तो आप इसके साथ कटिंग कर लो, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर. वी शुड हैव वन न्यूमरेटर वन डिनोमिनेटर फॉर कैंसलिंग. या फिर आप इस वाले के साथ कर रहे हो तो फिर आप उसके साथ नहीं करेंगे उस स्टेप में, राइट? आई होप इट्स क्लियर. जब ये सॉल्व हो जाएगा, कटिंग वटिंग सब हो जाएगी, तो आपका एंगल आ जाएगा. सेम स्टेप्स फॉर दीज. यहाँ कटिंग वटिंग कर लो, आंसर आपका आ जाएगा. ये सीधा ही हो जाता है, 6 4 24 और ये 490 कटिंग वटिंग हो जाती है, राइट? सो अगर ये वाला 5 उसके साथ नहीं कटता है तो यहाँ कटेगा 2 2 समथिंग एंड ऑल. सो फाइंड आउट द एंगल्स. एक बार आपके एंगल्स आएंगे. नाउ योर टास्क इज टू मेक द सर्कल ग्राफ. सर्कल ग्राफ के लिए यूल बी टेकिंग कंपास. कंपास से आप सर्कल तो बनाएंगे, थोड़ा बड़ा सा बना लो, राइट? नाउ यू हैव टू डिवाइड this circle into different angles, 120 90 75 45 and 30. लास्ट वाला अपने आप बन जाता है. सो बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन तो लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आप चाहे कंपास से बनाए चाहे डी से बनाए, एक स्ट्रेट लाइन तो होनी चाहिए. सो आप सबसे पहले उस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ. ये लाइन आप बना दो, एक स्ट्रेट लाइन यू हैव गॉट. नाउ टेक द डी. डी आपको पता है, डी में 2 स्केल्स होते हैं. सो सम चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज कौन से वाला कहाँ से यूज करना है. तो आप क्या करोगे, अगर आपका यहाँ स्केल है, आपने उसको डी यहाँ पे रखा हुआ है, लाइक आप यहाँ रखते हो, अगर आप कंपास को यहाँ रखते हो तो आप ऑब्वियसली यहाँ से एंगल्स बना रहे हो. यहाँ से यू आर मेकिंग द एंगल्स फ्रॉम हियर, 0 डिग्री 10 डिग्री ऐसे ऐसे ऐसे. तो आप अंदर वाला स्केल देखते हो, अंदर उसमें यहाँ से इंक्रीज होते हैं 0 10 20 30. तो आपका यहाँ लाइन है, आपके एंगल्स ऐसे बनेंगे 30 40 50 60 90 80 ऐसे. सो देन यू हैव टू यूज द इनर वन. सपोज आप, आई विल एक्सप्लेन हियर, आपने लाइन इधर की नहीं बनाई, आपने लाइन इधर को बना दी, राइट? दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर. अब मैंने ऊपर वाले में तो आई एम सेइंग दैट टेक दिस लाइन. नाउ आई एम नॉट टेकिंग दैट लाइन, आई एम टेकिंग द लाइन दिस साइड. अब मुझे एंगल यहाँ तो नहीं बनाने हैं, मुझे तो यहाँ से बनाने हैं. तो आई बी कीपिंग डी हियर. डी मेरा यहाँ रखा जाएगा, राइट? आधा आधा में जाएगा, आधा उधर को जाएगा, आधा सेंटर से सेंटर आपको मैच करना है, द सेंटर विद द सेंटर. तो डी का आधा पोर्शन उधर जाएगा, डी आधा इधर को होगा. अब क्या करना है आपको एंगल्स जो है, ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ 0 की, ये 0 की लाइन है. आपको इंक्रीज करने एंगल, यू हैव टू इंक्रीज 10 20 30 40 ऐसे. तो वो रीडिंग फिर बाहर वाली देखते हैं, क्योंकि बाहर वाले स्केल में आपके 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 10 20 30 40. तो ये यहाँ से यू विल बी मार्किंग द आउटर स्केल, क्योंकि अब आपका 0 यहाँ को है और उसका 0 बाहर वाले का यहाँ होता है, राइट? आई होप इट्स क्लियर. सो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, मैंने तो यहाँ पे राइट साइड को लाइन बनाई. सो मैंने जब यहाँ डी रखा तो मेरा डी ऐसे आधा इधर जाएगा, ऐसे रखा जाएगा यहाँ डी. दिस विल बी दिस वे, ठीक है? आधा उसका इधर को होगा, आधा इधर होगा, इक्वल होगा, और ये सेंटर से सेंटर मैच होगा. अब मेरा 0 यहाँ है, आई नीड हियर 10 20 30 40. आपका इनर स्केल ऐसे इंक्रीज होता है इधर से 0 10 20 30. तब आप अंदर वाला स्केल देखोगे. आई होप इट्स क्लियर कि अगर आप लाइन इधर बनाते हो और आपका यहाँ को रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तब आप बाहर का देखते हो. और अगर आपकी इधर वाली लाइन है, इधर वाली नहीं है, तो आपका यहाँ 0 डिग्री होगा, फिर 10 20, तो आपका ये वाला ऐसे इंक्रीज होगा. देन यू हैव टू सी द इनर स्केल. तो आप डी को रखो,
पॉइंट पे रखो, जस्ट सी द स्केल्स। जीरो अगर आपका यहाँ से आपने इंक्रीज करने एंगल जीरो, तो अंदर वाला स्केल। अगर आपने इधर को लाइन बनाई है, आपका जीरो यहाँ है, 0, 10, 20, 30, 40, तब आप आउटर स्केल देखते हो। आई होप इट्स क्लियर हाउ टू यूज द प्रोट्रैक्टर, राइट। इनर स्केल देखनी है, आउटर स्केल देखनी है, तो कई बच्चे लाइन इधर को बना देंगे तो वो आउटर स्केल देखेंगे। सो सम चिल्ड्रन विल बी मेकिंग लाइन हियर, तो मैंने फिर मेरा जीरो यहाँ है, मुझे ऐसे इंक्रीज होना है, तो देन आई सी द, आई बी चेकिंग द इनर स्केल। अब आपने क्या किया, आपने डी यहाँ रख दिया, ये ऐसे। आप मेरा 120 इनर स्केल में यहाँ दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पॉइंट मार्क कर दो ऐसे। देन टेक अ स्केल, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ मेजर करके ज्वाइन करके, देन यू कैन मेक अ लाइन देयर। तो आपका 120 डिग्री तो आराम से बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप, maybe there might be a confusion, अब डी कहाँ रखनी है। now you have to keep the d here। अब हमने ये लाइन से बनाया था एंगल, तो डी को उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर रखा मतलब ये लाइन उसके इसके साथ मैच होनी चाहिए। अब आप डी को यहाँ रखेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कीप हियर डी इफ स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। अब डी उठाई, डी को हमने इधर, क्योंकि हमने अब ऐसे मूव करना है, तो डी को आप यहाँ रखोगे, डी को यहाँ रखोगे मतलब इसका टिप, you'll be matching this tip with this tip। तो होगा क्या, डी आधी आधी रखी जाएगी ना, अगर आप सेंटर से टिप में, आधा डी इधर को होगा, आधा इधर को, ऐसे डी बनेगी। आप डी यहाँ पे ऐसे रखोगे, you'll be keeping this way, right। तो ये टिप के साथ हो गया। आपका एंगल यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनर स्केल देखोगे, इनर स्केल में 0 से लेकर आपने 90 पे जाना है, तो 90 विल बी हियर, राइट। सो आप 90 वहां पे मार्क कर दो, एंड अकॉर्डिंगली फिर देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू। नाउ आई विल एक्सप्लेन अगेन कि अब डी कहाँ रखनी है। तो अब ये एंगल आपको 90 मिल गया। नाउ आप क्या करेंगे, अब डी को यहाँ रखेंगे, सेंटर से सेंटर मैच करेंगे, ये लाइन मैच करेंगे, आधा डी उधर को जाएगा, आधा डी ऐसे रखे जाएगा, राइट। सो यू विल सी द स्केल फ्रॉम हियर, यहाँ 75 लिखा होगा, उसको मार्क कर दो, 75 आपका, वो फिर लाइन ज्वाइन कर दो, देन यू विल गेट एन एंगल ऑफ 75। अब टर्न आती है इस वाले की, राइट। आई विल रन साइड बाय साइड। नाउ अब आपने डी यहाँ रखा, सेंटर से सेंटर मैच किया, आधा डी इधर को जाएगा, आधा डी उधर को जाएगा, आप डी ऐसे रखें, क्योंकि अब इस लाइन से एंगल बनाना है आगे को। सो हियर मेजर 45, जो 45 जहाँ होगा वो पॉइंट आ जाएगा, ये 45 हो गया, राइट। 45 ही था ना, हाँ। अब लास्ट वाला आपको नहीं बनाना है, क्यों, बिकॉज यूल गेट दिस लाइन एंड यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस लाइन इन द स्टार्टिंग। सो 30 अपने आप बनता है, लास्ट वाला एंगल अपने आप बन जाता है, क्योंकि अब क्या ड्रॉ करना है, जो बचा है वो 30 होना चाहिए। सो यू शुड चेक कि डी में डी रखो और चेक करो कि हाँ ये 30 ऑटोमेटिकली बना है, और अगर नहीं बना है तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ आपने एंगल्स ठीक नहीं बनाए। सो देयर शुड बी परफेक्शन इन मेकिंग द डी। आई होप इट्स क्लियर कि डी को कहाँ रखना है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, यहाँ डी रखा तो यहाँ से एंगल मिलाया, फिर यहाँ डी रखा तो यहाँ से एंगल ली, फिर इस पे डी रखी वो ऐसे जाएगी यहाँ, फिर इस पे डी रखी तो यहाँ पे ही लाएगी, मतलब जो लाइन फ्रॉम वे यू हैव टू मेक द एंगल, कीप द डी देयर, right। So वहां से डी बना दो। I hope now data handling is clear। What is data handling? What is raw data? What is range? What are class marks? What is bar graphs? What is double bar graphs? What are histograms? Histogram से continuous data होता है, बार के फॉर्म में बनाना होता है, बस कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि 60 to 65 दोनों में रिपीट होता है, फिर 65 से 70, 70 to 75 में 70 रिपीट होता है, लाइक दैट। सो वो कंटिन्यूटी में बनता है, दैट इज अ हिस्टोग्राम। सो पाई चार्ट क्या है, इट इज अ सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ में हम राइट डिवाइड करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें बता सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन किया, एंगल का ड्रॉ किया, right, protectors needed, compass is needed, pencil is needed, scale, right, so you need whole geometry box to make this. I hope it's clear. Now try the question of pie chart yourself, take the data, convert it into angles, वैल्यू ली, टोटल से डिवाइड किया, 360 से मल्टीप्लाई किया, एंगल आ गया, एंगल को प्लॉट करके you'll get the circle graph. So I hope this data handling is clear, children. Okay, right, stay blessed. Thank you.